Okay, so I started the recording. So good afternoon to everyone. So we are continue the today's topic, that is we are discussing the calibration of glassware from the morning session. So few parties left from the particular session. So we will continue the same session in the afternoon lecture as today's current lecture. So it is actually the part of your paper 4, unit 4, that is analytical method validation, and calibration of instrument and glassware is a subtopic of that particular topic. So we are discussing about how exactly we are doing the calibration of the glassware. I just give few slide before, so it will be helpful. So we are already see the what are the requirements. I just read this particular slide to connect the link. That is, what are the requirements we basically need to calibrate the glassware. So first of all, it is nothing but the calibrated weighing balance, calibrated thermometer, accurate to zero point 0.1 degrees Celsius with calibration certificate and value traceable to the NIST. Pure distilled or deionized water, then stopwatch, and glassware should be the clean and proper. The next, we are seeing that the volumetric, how exactly we will do the calibration of the volumetric flask. So these are the steps. I just read the steps to reconnect it, and we will see that particular slide. So before we start the calibration, it should be carried out at 25 degrees Celsius plus or minus 2 degrees Celsius temperature. That means the room temperature should be the 25. Tear the weighing balance, that is you keep the balance at 0. Weight the empty volumetric flask and record the volume in gm. Then note if the class of A or B. As I said, I will discuss exactly what is the class 1 grade, that is the class A grade volume matlab glassware, and what are the class 2 B. Fill the volumetric flask up to the mark with the distilled water and reweight it. See, I already mentioned after the reweighting we are not tear the balance. We tear the balance starting में जब zero weight पे होगा. उसके बाद glassware का weight लोगे तुम लोग, and then after that you just fill along with whatever the distilled water we are using for the calibration purpose. Accurately you will fill that particular flask and you again reweight it. This particular time you are not tearing the balance. On the same weighing balance we are directly taking the weight. Measure the temperature of the water which is we are using for the weighing purpose के लिए, and repeat the procedure minimum the 5 times. As I say, only empty flask का weight हम लोग single time पे लेते हैं. Then और जिसके अंदर तुम लोग ने water fill किया, then you are taking the weight. उसके बाद वो water destroy करोगे. Then you will take the second, that is you will repeatedly 5 times तुम लोग water fill करोगे. Second reading लोगे, third reading, fourth and fifth. And then we are particularly on this particular page in the last lecture. So these all things I have already explained you what is exactly glassware ID, manufacturers, temperature, जो कुछ भी है. So we are on this particular column. So this is nothing but the empty flask weight. So यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि weight में थोड़ा सा different है. So maybe they are taking the 5 times weight of the glassware, but ideally जितना मैंने perform किए है, you can use the single time weight of the glassware and repeat. मतलब empty glass का weight, because whenever you take the empty glass उसके बाद fill करने के बाद it is not easy to dry your flask again and again take a weight. सो जनरली 5 टाइम्स के लिए हम लोग सिंगल एम्प्टी वेट लेते हैं. देन ईच 5 टाइम जब तुम लोग ने वेट लिया था, अभी मैंने बताया कि हम लोग बैलेंस को टेयर नहीं करने वाले. सो दैट्स व्हाई इसका वेट इट इज, ये कुछ भी वेट था उसके बाद यहाँ पे 50 ml का अराउंड वॉल्यूम है, तो 50 प्लस उसके यहाँ पे वेट है. सो दीज आर द वेट प्लस व्हाट इज द वेट ऑफ द फ्लास्क विद द वाटर. Then weight of the water, that is nothing but the this minus this, that is the weight of the flask with water minus empty flask ka weight, that is the weight of the water. This is the correction factor. As I say, when we are taking the weight, we actually check the temperature of the water, that is nothing but a 24 degree Celsius. And as per calibration हम लोग को 27, अगर 24/7 पे water का weight इतना है तो 27 पे कितना आएगा, उसके लिए यहाँ पे they are already mentioned the some correction factor, it is a plus 0.188. So by the calculation with the correction factor we get this particular value. And this is nothing but the second correction factor, it is a volume, that is a weight and density, because each temperature पे density अलग है. So जब हम लोग ने ये particular temperature पे density लिया था तो water का density था 0.9972. So this particular weight divided by density, so this is the actual weight of your 50 ml of water. So this is the first time जब तुम लोग ने किया था, this is the second, this is third, fourth and fifth. अभी क्या करोगे तुम लोग, इसका मीन निकालोगे. So here it is a mean value of this particular 5 readings. Then actually कितने ml का फ्लास्क है, 50 ml का. So original volume कितना होना चाहिए, what is the expected volume, because volumetric flask 50 ml का है तो 50 होना चाहिए.
तुम लोग को रीडिंग मतलब दिस इज द एक्सपेक्टेड वॉल्यूम दैट इज अ 50 ml and then this is the actual reading you are getting that is a 49.9588, right? So this is the actually deviation that is a 0.0412. what is nothing but a deviation that is 50 minus इसका तुम लोग ने रीडिंग माइनस किया, रीडिंग माइनस करने के बाद तुम लोग को मिला 0.04, मतलब एक्चुअली तुम्हारा रेडिएशन से इतना डेविएट हो रहा है. व्हाट इज द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर 50 ml का ग्लास मतलब ग्रेड ए वॉल्यूम के लिए? द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, द वॉल्यूम मतलब जो भी वेरिएशन या फिर डेविएशन आ रहा है, इट शुड नॉट बी द मोर देन योर दिस पर्टिकुलर वैल्यू दैट इज 0.0600. तो अपना डेविएशन कितना है? 0.04. that means we are within the limit. So this particular glassware is properly calibrated and you can use for the वेइंग पर्पज के लिए, मतलब सॉरी वॉल्यूम के लिए तुम लोग यूज कर सकते हो. जस्ट नोट डाउन डेविएशन दैट इज 0.04 और द लिमिट इज 0.06. ठीक है, इट इज नॉट ओनली 0.1 0.2, इट इज 0.06. ठीक है, सो इतना एक्यूरेसी होता है. एंड जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि रीडिंग्स देखने के लिए इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि क्या करना है, सिर्फ 5 टाइम्स वेट तो लेना है, उसके बाद सिर्फ सारा कैलकुलेशन करना है. लेकिन जितना दिखता है उतना इजी नहीं होता है व्हेन यू आर एक्चुअली कैलिब्रेटिंग द ग्लासवेयर्स, बिकॉज रूम का टेम्परेचर, एसी, इसकी वजह से तुम लोग का रीडिंग्स में बहुत फ्लक्चुएशन होता है. एंड ये जो रीडिंग्स है ना, इसमें जो मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि द वेरिएशन इज वेरी वेरी लेस. कभी कभी क्या होता है कि वेरिएशन अगर बहुत ज्यादा रहेगा, सो यू कैन नॉट द मैनिपुलेट रीडिंग, बिकॉज वेन एवर यू आर डूइंग द कैलिब्रेशन जनरली इन कंपनी, द वेइंग बैलेंस के साथ तुम लोग को जो भी वेट तुम लोग ने लिया है, यू हैव टू टेक द प्रिंट आउट दैट पर्टिकुलर वेट की. तो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि 49.60 चाहिए, हम लोग को 61 मिला है तो चलो 60 कर देते. नो, जो वेट आए तुम लोग को वही वेट लेना होता है एंड उसके हिसाब से यू आर परफॉर्मिंग द कैलिब्रेशन. सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर कैलिब्रेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. ये जो टेबल कंटेंट है, दिस प्रोसीजर और दिस पर्टिकुलर टेबल और वी कैन से दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट इज सेम फॉर मैक्सिमम कैलिब्रेशन ऑफ योर ग्लासवेयर्स. बस कुछ चीजों के लिए थोड़े मोटे डिफरेंस है, वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो अप टिल हियर यू हैव द क्लियर एग्जैक्टली कि व्हाट इज इन हाउ एग्जैक्टली वी परफॉर्म द कैलिब्रेशन of the glassverse. Anybody is having any doubt, you can just write in chat box, otherwise I will move for the next slide. I just open the chat box. Just write no if you don't have any doubt, so I can move for the next slide. Anybody? Okay, no ma'am, Supriya. Thank you, Supriya. So we will continue for the next slide. तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा कि exactly what is the calibration, definition देखा calibration का. After the definition, why we do the calibration, when we do the calibration. Then मैंने आप लोग को क्वेश्चन पूछा था कि exactly कौन से glassware का हम लोग calibrations करते हैं, कौन से glassware का नहीं. So majorly we are doing the calibration for only those glasswares which we are using for measuring और मतलब जिसका specifically volume, accurate volume measurements के लिए हम लोग use करते हैं. We are using the that particular glass. So here up till now we are completed. So we will move for the next calibration after volumetric class. What we will exactly the calibrated for the next. So I just move for the next slide. So here we are. Okay. So let's see the how we will exactly calibrate the burette. Okay, burette हम लोग कैसे calibrate करें. So what is exactly burette? The burette is nothing with a graduated glass tube having the tappet bottom with the wall, and it is used specifically in laboratory to pour the major amount of liquid from one container to another container, right? जब हम लोग किसी चीज के लिए measure करना है, most probably we are using for titration, or you can use for the pour the liquid from one container to another container. Major amount, like that is suppose you want to suppose जैसे कि maximum you can use the 50 ml का pipette वगैरह, but more than 50 ml तुम लोग को sample लेना है and you don't have a graduated pipette like more than 10 ml. तो जैसे कि suppose हम लोग को 17 ml लेना है या फिर 20 ml का कोई liquid transfer करना है. So most of the time we are using the burette where we completely fill the burette with the liquid and particular amount we can transfer in the beaker, conical flask or any other glassware. So this is a major use of the burette. So generally what is the purpose? That you measure the accurate amount of volume of liquid from one container to another container we are transferred. So definitely उसका volume accurate है या नहीं check करने के लिए we are using the burette. So how exactly we will calibrate the burette?
So procedure is almost similar. So I just read this point. Let's see, there are few steps are additional with respect to volumetric flask के अंदर जो steps है उसमें से 2-3 step है जो additionally यहाँ पे हम लोग use करते हैं. So we will see the what are these particular steps. So calibration should be the carried out on the 25 plus or 2 degrees Celsius. It is the same. Use the clean 50 ml burette. Note if this is a class A or other grade. That is a B grade or A grade. That is depend upon the accuracy of the grade. Fill the burette with the water. Make sure the tip is free of bubble. Drain into the waste beaker until it is at or just below the zero mark. मतलब एक बार dry beaker को तुम लोग completely fill करके remove करोगे. Sorry, then allow 10 to 20 seconds for drainage. मतलब कुछ अगर liquid बचा है तो drain करने के लिए. Then make the initial reading to the precision at least 0.01 ml. Test for tightness of the stop cock by allowing the burette to stand for 5 minutes and then rereading the volume. There should be the no notifiable changes in the reading. Once the tightness of the stop clock is assured, refill the burette again and drain into the waste until it is at just below the zero mark. Drain about 5 ml of water from the burette into the clean, previously wet beaker and wet the beaker and read the burette. Repeat the procedure 5 times for same value and repeat the procedures for the 15, 25, 45 ml also. सो जनरली अभी इसमें से हम लोग को क्या पता चला कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग. दैट इज सबसे पहले तो हम लोग को जिस ब्यूरेट करना है मतलब व्हाट एवर ब्यूरेट यू वांट टू कैलिब्रेट दैट ब्यूरेट, देन वाटर, डिस्टिल वाटर वगैरह जो कुछ भी चीजें लगने वाली है वी विल कीप इट इन द पर्टिकुलर रूम बिफोर 1 hour बिफोर द स्टार्टिंग योर कैलिब्रेशन. सेम दैट इज एज अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. ठीक है. देन वी विल चेक द टेम्परेचर ऑफ द वाटर विच वी आर एक्चुअली यूजिंग फॉर कैलिब्रेशन पर्पज. देन तुम लोग का ब्यूरेट ड्राई रहेगा, उसके बाद तुम लोग को ब्यूरेट फिल करना है. फिल करने के बाद उन्होंने बोला कि एडजस्ट 0 तक एडजस्ट करने के बाद उसको कंप्लीटली ड्रेन करना है. ठीक है. उसके बाद 0.1 वगैरह थोड़ा सा लिक्विड डाल के उसको फिर से रीफिल करके ड्रेन करना है. यू नो व्हाई वी आर परफॉर्मिंग दिस बिकॉज सरफेस टेंशन कभी कभी ऐसा होता है कि वो रीडिंग मतलब कंप्लीटली ड्राई ब्यूरेट हो तो वो कभी कभी नीचे इजीली नहीं आता है, तो थोड़े बहुत बबल वगैरह से साइड में लगे हुए रहते हैं, तो वो इट मे बी अफेक्ट ऑन योर एग्जैक्टली अमाउंट ऑफ वॉल्यूम. सो वो ना हो इसलिए हम लोग को ब्यूरेट को रीफिल करके कंप्लीटली 0 तक उसको ड्रेन करना है. उसका जो क्लॉक है मतलब जो हम लोग क्लोज एंड ओपन करने के लिए ऊपर रखते हैं वो प्रॉपरली टाइट है या नहीं वो चेक करना है. ब्यूरेट लीक तो नहीं हो रहा है, वो सब सारे पॉइंट्स हम लोग को चेक करने. ये सब चेक होने के बाद एग्जैक्टली तुम लोग क्या करोगे, देन यू विल रीफिल द ब्यूरेट वंस अगेन एंड एडजस्ट टू द 0 मार्क्स. ठीक है. ये अपना सेटिंग हो चुका है कि अभी हम लोग को कैलिब्रेशन स्टार्ट करना है. Then drain about the 5 ml of water from the burette into the clean previously wet beaker and wet the beaker and read the burette. This is a very very important step because this is actually the calibration step. तो अभी सब कुछ ब्यूरेट रिंस होने के बाद 0 तक मार्क करने के बाद फिर हुआ. अभी हम लोग को क्या करना है, वी वांट टू टेक एम्प्टी बीकर. ठीक है. बिकॉज वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के लिए कैसे था, यू कैन इजीली कीप द फ्लास्क ऑन यूर क्या बोलते हैं वेइंग बैलेंस एंड यू कैन इजीली वेट. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. यू कैन नॉट कीप द ब्यूरेट इन योर बैलेंस एंड यू कैन वेट द एम्प्टी ब्यूरेट एंड अलोंग विद द वाटर. सो एग्जैक्टली हाउ वी विल कैलकुलेट कि कैसे कितना अमाउंट ऑफ ब्यूरेट के अंदर है या फिर जितना अमाउंट हम लोग को एक्सपेक्टेड है ब्यूरेट से आता है, जैसे कि 5 ml अगर ब्यूरेट से हम लोग बीकर में लेते हैं तो सच में 5 ml वॉल्यूम आता है नहीं, ये कैसे चेक करेंगे. तो इसके लिए तुम लोग क्या करोगे, क्लीन एंड ड्राई एम्प्टी बीकर लेना है. ये बीकर भी सेम जब भी तुम लोग प्रैक्टिकल मतलब परफॉर्म करोगे तभी तुम लोग को उस रूम में लाके रखना है जिसका टेम्परेचर जो रूम का टेम्परेचर है वही होना चाहिए. उसके बाद एम्प्टी बीकर का हम लोग वेट लेंगे. वेट लेने के बाद जो अभी ब्यूरेट डीआयोनाइज्ड वाटर से फिल किया है उसमें से 5 ml ऑफ तुम लोग का जो वाटर है वो तुम लोग बीकर में लोगे. अभी बीकर को बैलेंस को टेयर नहीं करोगे, फिर बीकर को वहां पे रखोगे. नाउ वी विल टेक द वेट दैट इज एम्प्टी प्लस 5 ml वाटर का जो भी, जैसे कि एम्प्टी का वेट इमेजिन करो 20 है तो वाटर डालने के बाद तुम लोग का वेट अराउंड 25 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा. ठीक है. उसके बाद सेम तुम लोग को जो लिक्विड आया है उसको वेस्ट करना है मतलब रिमूव करना है. ऐसे 5 टाइम्स तुम लोग को रेट मतलब वेट रीडिंग लोगे. 5 ml फर्स्ट, सेकेंड 5 ml, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. सेम वे यू विल रिपीट द प्रोसीजर. पहले 5 ml का करोगे, उसके बाद 15 ml, उसके बाद 25 ml, उसके बाद 45 ml मतलब ड्रेन करोगे. पहले 5 ml के 5 रीडिंग्स हो गए. ओके.
नाउ यू विल मे बी सेम बीकर ले लो या फिर कोई और बीकर ले लो, इसका ड्राई वेट लोगे, उसके बाद 15 ml वाटर उसमें ऐड करोगे, उसका वेट लोगे, ड्रेन करोगे, फिर से 15 ml वाटर लोगे, उसको लोगे, ड्रेन करोगे. The procedure is repeatedly for 15, 25 and 45. Now you will get the reading. So वहां पे और इसमें मतलब ब्यूरेट कैलिब्रेशन हो या फिर पिपेट कैलिब्रेशन हो और मेजरिंग सिलेंडर का कैलिब्रेशन, सॉरी नॉट मेजरिंग सिलेंडर, ब्यूरेट पिपेट एंड देयर इज अ वन मोर थिंग व्हिच वी आर कैलिब्रेटिंग, हाँ सॉरी, जो छोटे वाले मेजरिंग सिलेंडर वगैरह होते तो इसका कैलिब्रेशन करने के लिए वी आर यूजिंग बीकर्स, वी आर नॉट यूजिंग बिकॉज हम लोग को लिक्विड को ड्रेन करने के लिए कुछ तो लगता है. ठीक है, सो यही सिर्फ डिफरेंस है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एंड इसके कैलिब्रेशन में, बाकी का प्रोसीजर ऑलमोस्ट सिमिलर है. सो लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड. सी अभी यहाँ पे ये सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल नहीं किया है, इट इज द सेम जैसे तुम लोग का ये वाला, सॉरी ऐसे ही सेम उसका डिस्प्ले होता है जिसका हाउ मच अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, जैसे कि यहाँ पे ओरिजिनल ब्यूरेट कितने एमएल का है उसका वॉल्यूम आएगा, ग्लासवेयर आईडी डेफिनेटली प्यूरेट का आईडी आएगा, इसे यहाँ पे लिखा है देखो AAS 50VF01. इसका मीनिंग क्या पता है, दिस पर्टिकुलर फ्लास्क इज यूज फॉर AAS एनालिसिस, उसका वॉल्यूम है 50 ml एंड मतलब ये उसके लिए जो जितने भी फ्लास्क अवेलेबल है AAS के लिए उसमें से ये फर्स्ट नंबर का फ्लास्क है, दैट इज नथिंग बट योर ग्लासवेयर आईडी. वैसे ही हर एक चीज का वहां पे आईडी रहेगा, ब्रांड मतलब कौन से कंपनी का है वो वगैरह सब सेम रहेगा. देन नेक्स्ट दैट इज 1 2 3 4. अभी ये यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ये क्या है, दैट इज नथिंग बट द 0.5 5 25, उसके बाद आगे रहेगा 45 वगैरह समथिंग समथिंग जो भी है. टोटल वॉल्यूम है 50, तो 45 ml तक का वॉल्यूम यहाँ पे मेंशन रहेगा. सो 0.5 ml ये है तुम लोग का एम्प्टी बीकर का वेट. उसके बाद एम्प्टी बीकर प्लस 0.5 ml ऑफ वाटर का फर्स्ट रीडिंग, दिस इज सेकंड रीडिंग, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स. ये 5 ml के लिए दूसरा तुम लोग ने एम्प्टी बीकर लिया. अभी यहाँ पे देखो सब सारे जगह पे उन्होंने वेट सेम लिखा है, दैट मींस दे आर यूजिंग द सेम बीकर फॉर ऑल द एनालिसिस. दिस इज द एम्प्टी बीकर का वेट इज सेम. उसके बाद 5 ml जब तुम लोग ने लिक्विड डाला उसका वेट, दिस इज फर्स्ट रीडिंग, दिस इज योर सेकंड रीडिंग, दिस इज योर थर्ड रीडिंग, दिस इज योर फोर्थ रीडिंग एंड दिस इज योर फिफ्थ रीडिंग. सेम फॉर 25. इसके बाद आएगा 45 ml एंड उसके बाद आई गेस दे हैव गिवन, अच्छा वो यहाँ पे दिखा है देखो 25 के बाद दिस इज अ 50 ml का लिए लिखा है. द स्लाइड इज लिटिल बिट ब्लर बिकॉज मैंने बोला कि दिस इज अ पर्टिकुलर इमेज, सो आपको शो करने के लिए मैंने ये इमेज कॉपी पेस्ट किया है, इसलिए उसका वैल्यू थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन यू कैन, आई होप यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग इन कैलिब्रेशन. सो उसके बाद ये रीडिंग्स लेने के बाद जो भी उसका मेजरमेंट रहेगा, इट इज द सेम एज पर यूर दिस पर्टिकुलर स्लाइड. जैसे कि हर एक का वेट रहेगा, उसके बाद एम्प्टी वेट हम लोग माइनस करेंगे, उसके बाद जो वाटर का मतलब टेम्परेचर का फैक्टर रहेगा उसे तुम लोग ऐड करोगे, उसके बाद यू विल डिवाइडेड बाय द डेंसिटी, उसके बाद उस पर्टिकुलर वैल्यू का मीन निकालोगे. ठीक है, एंड दिस इज द एक्चुअल वैल्यू. यानी अभी यहाँ पे हम लोग ने एक्चुअल वैल्यू के लिए वी हैव द 5 वैल्यूज बिकॉज ब्यूरेट के लिए, सॉरी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के लिए यू हैव ओनली सिंगल रीडिंग 5 रीडिंग्स का. लेकिन when we are performing for the burette, we are actually 5 different mean, right? So वो 5 different mean के हिसाब से उसका क्राइटेरिया रहेगा, मतलब फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, एंड उस सब का जो रीडिंग्स है इट शुड बी मैच विद दैट, इट शुड बी प्रेजेंट विद इन द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया. Then only you can say your burette is a calibrated. So here anybody is having any doubt or can I continue for the next slide? Just write no if you don't have a doubt in chat box. And if you have any doubt, just you can ask. Supriya Shinde say no, there is no doubt. So okay, if you have any doubt, you can raise your hand anytime so I can allow you to unmute yourself. Okay, so we will move for the next slide. Definitely. Sorry, just 1 second. So here we are. Okay, now we will see the how we'll do the pipette ka calibration. The procedure is same as your burette calibration. How exactly? What is exactly pipette? So pipette is a laboratory tool commonly used in chemistry, biology, and medicines for the measuring the small volume of the solution. So जैसे मैंने बोला burette we are using for transferring the major amount of volume, and pipettes we are used for transferring the small amount of volume.
ठीक है। सो जैसे कि तुम लोग का पिपेट का कैलिब्रेशन करना है, इट्स ग्लास पिपेट हो और माइक्रो पिपेट हो, द प्रोसीजर इज सेम, बिकॉज दोनों से हम लोग को रीडिंग में वॉल्यूम ही मेजर करना है, तो दोनों के लिए जो प्रोसीजर होता है वो सेम होता है. सो लेट्स सी. I can just read this slide because the points are repeatedly same. If I feel any point is new, then I can explain that particular point. So wet a clean and dry 50 ml beaker on the top loading balance and 0.1 milligram and record the weight. Then fill the 10 ml of pipette to above the mark and remove any water adhering to the outside of the pipette. Place the tip of the pipette in contact with the inside the beaker and slowly lower the meniscus of the mark. Do not remove any more water from the outside of the pipette. Touch the top of the side of weight beaker and dispense the water until the holding the pipette vertically. After the water has cleaned floating, wait for 2 seconds, then remove the pipette from the container. Reweight the beaker and calculate the weight of the water plus beaker and record the water temperature in laboratory or notebook. Repeat the procedure until you have the 5 separate measurement for the same pipette. तो यहाँ पे क्या करना है, सेम जैसे ही एम्प्टी बीकर लोगे उसका पहले वेट लोगे, उसके बाद ये प्रोसीजर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि हाउ एग्जैक्टली वी आर taking the liquid from burette and how exactly we are dispense your liquid to the burette. तो जब तुम लोग को लेना है, आइदर यू कैन यूज माउथ पिपेटिंग, यू कैन यूज रबर बल्ब और जो भी टेक्निक्स तुम लोग यूज कर रहे होगे ड्यूरिंग योर प्रैक्टिकल. उसके बाद तुम लोग को अप टू द मार्क बीकर को लेना, मतलब लिक्विड फिल करना है टू योर पिपेट. आफ्टर दैट यू जस्ट, जैसे ही तुम लोग का एम्प्टी बीकर का वेट हो गया, तुम लोग को जो बीकर है यू कैन कीप वेट एज अ बैलेंस के ऊपर ही रखना है. उसके बाद बीकर को तुम लोग को एग्जैक्टली स्ट्रेट फिल करके स्लोली स्लोली लिक्विड तुम लोग को उसमें बीकर में डालना है. जब भी तुम लोग लिक्विड डिस्पेंस कर रहे हो, यू शुड नॉट बी टच द पिप टिप ऑफ योर पिपेट टू द एजेस ऑफ योर बीकर. एंड हम तुम लोग को पता होगा कि जब भी हम लोग ब्यूरेट से सॉरी पिपेट से लिक्विड ड्रॉप करते हैं तो पूरा लिक्विड नीचे नहीं आता, एक दो ड्रॉप तुम्हारे वो टिप के अंदर रह जाते. तो कीप इट एज इट इज, ठीक है. तुम लोग को उसको ब्लो करके या फिर कुछ भी करके रिमूव नहीं करना है. ऑटोमेटिकली जितना लिक्विड आ रहा है उतना तुम लोग को फ्लो करना है. उसके बाद यू हैव टू वेट फॉर 2 seconds and then you just remove the pipette from the container and you just reweight the beaker and calculate the weight of the water plus beaker. So this is the procedure same. सिर्फ हम लोग लिक्विड कैसे डालते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा. सो जनरली बैलेंस का ऊपर का, अपने बैलेंस को पता है 3 मतलब क्या बोलते हैं डोर्स होते हैं, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, ऊपर के साइड में होता है. तो जनरली ये बैलेंस करते हुए तुम लोग को ऊपर के साइड का डोर ओपन करके पिपेट से तुम्हारे बीकर में सॉल्यूशन या फिर लिक्विड डालना होता है. एंड अदर प्रोसीजर इज सेम एज इट इज. जैसे कि अभी दिस इज द वाटर टेम्परेचर, weight of the beaker and ये ठीक है weight of the empty beaker, this weight of this is the particular weight of the water. यहाँ पे भी सिंगल रीडिंग बोला है लेकिन इट इज नॉट, ये सिर्फ उन्होंने डिस्प्ले किया कि एग्जैक्टली कैसे करते हैं, लेकिन इसका भी प्रोसीजर सेम है. यू हैव टू टेक द 5 डिफरेंट बीकर एंड एवरी टाइम एम्प्टी बीकर का वेट लेना है तुम लोग को. उसके बाद उसके अंदर तुम लोग, बिकॉज पिपेट सेम रहेगा, सो एवरी टाइम, बिकॉज अभी तुम लोग ने वेट लिया बीकर का, एम्प्टी बीकर के अंदर तुम लोग ने लिक्विड डाला, अभी फिर से सेम के अंदर तुम लोग लिक्विड नहीं डाल सकते बिकॉज ये बहुत स्मॉल वॉल्यूम होता है. तो हार्डली एक दो ड्रॉप रह गया तो इट मे बी इफेक्ट ऑन योर रिजल्ट, बिकॉज जैसे कि 1 ml का वगैरह पिपेट है तो उसके अंदर काफी मेजर डिफरेंस आ सकते हैं. तो 5 बीकर रीडिंग के लिए यू हैव टू टेक 5 डिफरेंट बीकर्स. बेटर इफ यू टेक द 5 डिफरेंट बीकर, सो जितने भी एरर्स मिनिमाइज हो सकते हैं वी कैन ट्राई टू मिनिमाइज द एरर. बिकॉज 100 ml का वॉल्यूम लेना है एंड 1 ml का वॉल्यूम लेना है, इसके अंदर एक ड्रॉप अगर बीकर को चिपका हुआ है प्रीवियस लिक्विड या फिर वाटर का, तो 100 ml के लिए इट मे नॉट गिव द डिफरेंस, बट व्हेन वी आर डूइंग फॉर 1 ml का कैलिब्रेशन ऑफ पिपेट then definitely it may affect on your results. So that's why we are taking the 5 different empty beaker and we are displacing the water in that particular beaker. Then this is particular उसका जो फैक्टर रहेगा टेम्परेचर वाला फैक्टर से तुम लोग ऐड करोगे. देन वैल्यू मतलब डेंसिटी जो भी रहेगी वो it is the true value of, उसके बाद they have calculated and this is the particular calculation they come, that is 9.975. The true value is 9.97 of the water at 26 degrees Celsius multiply by this is the density and उसके बाद actually original volume आया 10.02 ml.
मतलब जो तुम लोग 10 ml का पिपेट का कैलिब्रेशन कर रहे हो तो उसे तुम लोग को 10.02 ml लिक्विड आता है. नाउ यहाँ पे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया नहीं दिया है. सपोज द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इज 10.01 वगैरह रहेगा, देन योर the pipette is failed for that particular calibration. And suppose it is a 10.0304 वगैरह रहेगा या फिर 05 रहेगा, then definitely your beaker will be passed for that particular criteria. So these are the major क्या बोलते हैं glasswares which we are calibrating before the validation or during the validation. That's why this is a very important to learn about कि how exactly glasswares and ये calibrate करते हैं. The micropipette का calibration भी same होता है. And suppose micropipette से proper calibration नहीं होता तो उसके साथ एक वो पाना टाइप में कुछ तो आता है जिससे you can adjust जो उसके readings के लिए, so you can get the value volume is accurate. So next, that is nothing but as I say, measuring cylinders. But measuring cylinders generally company are outsourcing the measure 100 ml के measuring cylinders रहेंगे, तो they can be calibrated with the same way जैसे हम लोग ने pipette का किया, burette का किया. But more than 100 ml के होते जैसे कि 250 ml का है या फिर 500 ml का है. So it is not possible to calibrate this kind of beakers in laboratory. में नहीं पॉसिबल होता है बिकॉज अपने वेइंग बैलेंस में 1 kg का वगैरह वाटर का वेट लेने के लिए इतना डेलिकेटेड बैलेंस नहीं होता है. So generally they are outsourcing this balance. I am giving this example because when I was working in a company, so there is a NABL audit with us, and we have done all the calibration of glasswares and etc. But we because we never realized कि इतने बड़े अभी वाली इसका सिलेंडर का कैलिब्रेशन कैसे कर सकते. So we just told them कि we are calibrated each and every glassware. So उन्होंने हम लोग को पूछा कि do you मतलब आपने मेजरिंग सिलेंडर्स के कैलिब्रेशंस किए. तो अभी तब तक ऐसे दिमाग में नहीं आया कि उसका कैलिब्रेशन नहीं होता है और हम लोग कभी करते ही नहीं. सो हम लोग ने बोला ये सर वी आर डन. सो उन्होंने बोला कि शो अस. तो उन्होंने एक पर्टिकुलर मेजरिंग सिलेंडर निकाला विच इज अ 500 ml एंड दे जस्ट say that कि just show me the data for this particular ये glassware का मुझे कैलिब्रेशन दिखा दो. And it's a confusing because we never do the calibration of 500 ml का measuring cylinders because it's not possible. क्योंकि अपने पास जो बैलेंस है जिसके ऊपर हम लोग वेट करें उसका मेजरिंग उसका लिमिट ही 250 मतलब ग्राम तक है, तो उसका कैसे करोगे. So then we tell them कि हम लोग generally outsource करते हैं and luckily we have the document for the outsourcing of that particular measuring cylinders and it's very lucky कि उसके लिए कुछ भी problems create नहीं हुआ. Okay, so here we completed maximally glassware का calibration ऐसे ही होता है. So we are completed maximum part. Let's see the type of glassware. That is as I say कि I just want to explain you later कि what are the different types of glassware. So this is the two class majorly for the glassware. The first is your class A and second is your class B, or it can be say as a grade A or grade B. मतलब generally company में the word use कर that is a grade A glassware and grade B glassware. So what is class A or grade A or class B or grade B glassware and what are the major difference between them? So first is nothing but the economy grade and student B is nothing but the student grade. Calibrated to half the tolerance of the class B, calibrated to the double the tolerance of the class A. What is the meaning of tolerance of the class A? मतलब double. इसका मतलब जैसे कि we are seeing this particular slide, right? So this is the tolerance limit. That is the acceptance criteria for 50 ml glassware is 0.06 तो 00. तो अगर ग्रेड ए का ग्लासवेयर रहेगा, सपोज दिस इज द ग्लासवेयर ग्रेड बी का ग्लासवेयर से, सो ग्रेड ए का ग्लासवेयर रहेगा उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया रहेगा 0.0300. So according this criteria your glassware is fail for that particular calibration because your reading is 0.04 which is greater than the 0.03. And suppose this is a glass B grade का है then definitely it is a within the acceptable limits. मतलब उसका जो accuracy होता है reading का which is high graded in your class A and class B. So class A में grade जो होता है accuracy जो होता है वो high होता है. So it is a have a high accuracy. Here we have the low accuracy. Use for quantitative work, use for quantitative and semi quantitative work. इट और अभी यहाँ पे कैसे डिफरेंस कहाँ पे आता है पता है. व्हेन यू आर यूजिंग द पीपीएम पीपीबी लेवल के सॉल्यूशंस जब बनाने होते
that time actually it made gave the difference, because when we are using LCMS, ICP-MS वगैरह instrument पे जब work करना होता है, so majorly we are using the grade A type of glasswares, and definitely उसका जो calibration क्या बोलते हैं measuring, मतलब makeup वगैरह जो होता है, preparation जो होता है वो बहुत accurately होता है. Generally when I was performing, जैसे मैंने बोला था कि I was performing that analysis of fish, that is a heavy metals present in the fish sample, ICP-MSA. तो मैंने तुम लोगों को बताया कि आई वॉज परफॉर्मिंग द ब्लॉक डाइजेशन. तो ब्लॉक डाइजेशन करने के बाद वी आर एक्चुअली दे आर प्लास्टिक के एक स्पेसिफिक टाइप के ट्यूब्स आते हैं, जैसे अपने टार्सन ट्यूब्स होते हैं ना, वैसे उसके पास हमारे पास ट्यूब्स थे. दे आर स्पेशली प्रिपेयर दिस काइंड ऑफ ट्यूब स्पेशली फॉर ICP-MS एनालिसिस, बिकॉज इट शुड नॉट लीक समथिंग इन योर सैंपल, एंड एक्यूरेटली वे होने के लिए उसका प्रॉपरली मिक्सिंग करना बहुत जरूरी होता था इसके लिए, बिकॉज द सैंपल इज PPB लेवल पे हम लोग उसके स्टैंडर्ड बनाए थे, 1 PPB, 2 PPB, 3 PPB. दीज आर द क्या बोलते हैं डाइल्यूशंस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स. तो एक्चुअली जब जैसे हम लोग बोलते हैं कि मेकअप करना है 10 ml के लिए, तो वी कैन इजीली मेकअप विद द हैंड, बट नो, दैट टाइम वी आर मेकअपिंग दैट पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब विद 200 ml माइक्रोलीटर ऑफ पिपेट. मतलब जब उसका फाइनल मेकअप करना होता था, सो इट्स अ स्ट्रिक्ट वार्निंग कि यू हैज टू मेकअप विद द 200 माइक्रोलीटर ऑफ पिपेट, बिकॉज थोड़ा सा भी सिंगल ड्रॉप भी अगर ऊपर नीचे होता है तो इट गिविंग द ह्यूज डिफरेंस. मतलब उसका जो कैलिब्रेशन का ग्राफ आता था वो क्राइटेरिया में फिट ही नहीं होता था. सो इसीलिए जब भी उसका हम लोग डाइल्यूशंस करते थे वो बहुत क्रिटिकल स्टेप होता था हम लोग के लिए, जिसके टाइम पे वी आर नॉट यूजिंग 1 ml का पिपेट ऑल्सो टू मेकअप, वी आर यूजिंग 200 माइक्रोलीटर का पिपेट टू मेकअप द सॉल्यूशन. सो हियर इट इज एक्चुअली important कि which type of glassware you are actually using. So suppose आधे डाइल्यूशंस के लिए ग्लासवेयर ए की यूज किए, आधे के लिए बी के यूज किए, तो डेफिनेटली इट मे बी गिव द प्रॉब्लम्स. एंड बी वाला इतना कैलिब्रेट नहीं रहेगा तो इट्स ऑल्सो गिव द, बिकॉज सिंगल इतना छोटा ड्रॉप से भी अगर तुम लोग का रीडिंग में इतना इफेक्ट आ रहा है, सो डेफिनेटली इटसेल्फ, मतलब एक ग्लासवेयर के अंदर वॉल्यूम तुम लोग का 10 ml के यहाँ पे 10.02 ml आ रहा है ना, एक पे 9.98 ml आ रहा है, तो इटसेल्फ वॉल्यूम में ही डिफरेंस रहेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज होगा ही. इसीलिए ये दो टाइप के अलग अलग ग्लासवेयर है, डिपेंडिंग अपॉन यूर क्या बोलते हैं सेंसिटिविटी, और वी कैन से द कॉन्सेंट्रेशन के जो लिमिट्स है उसके हिसाब से जनरली वी आर यूजिंग विच टाइप ऑफ ग्लासवेयर वी आर जनरली यूजिंग. So used for quantity work and semi-quantity or quantity. It always have a large A prominent near to the label. The glassware without A label is class B. तो generally जो भी ग्रेड ए के ग्लासवेयर होते हैं उसके ऊपर कैपिटल ए मेंशन होता है, एंड जिसके ऊपर कैपिटल ए मेंशन नहीं होता है वो सारे ग्लासवेयर तुम्हारे क्लास बी ग्रेड के होते हैं. सो अभी तुम लोग ने कभी ए लिखा हुआ नहीं देखा होगा, बिकॉज डेफिनेटली जो भी ग्लासवेयर अप टिल हियर वी आर यूजिंग इन आवर लेबोरेटरी, दिस ऑल आर ग्लास ग्रेड बी के ग्लासवेयर होते हैं. बट वेन एवर यू आर गोज इन अ कंपनी ना, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है ए. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ तुमने कभी ऑब्जर्व किया होगा, तो वॉट एवर कॉर्ड्स वी आर यूजिंग फॉर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर, उस कॉर्ड के ऊपर ऐसे क्यू लिखा हुआ है. दैट इज नथिंग बट इट्स अ कॉर्ड. अगर वो ग्लास का होता है ना तो उसके ऊपर क्यू लिखा हुआ नहीं होता है. अगर इफ इट इज अ कॉर्ड, मतलब कॉर्ड मटेरियल का, तो उसके ऊपर क्यू लिखा होता है. वैसे ही सेम टाइप में ए ग्रेड के ग्लासवेयर के ऊपर ए मेंशन होता है, विच इज कंक्लूड दैट कि दिस इज अ क्लास ए टाइप ऑफ ग्लासवेयर विच इज हाईली कैलिब्रेटेड, एंड इट इज अ giving the accurate reading for your sample. So these are the two glass grade of your glasswares. Okay. uh, what is the tolerance limit? This is also important. So what is exactly tolerance? Tolerance is the greatest range of variation that can be allowed for an instrument or इक्विपमेंट. दैट मीन्स जब भी सॉरी क्या बोलते हैं कि जो भी तुम लोग का इक्विपमेंट है उसके अंदर कितना एक्यूरेसी के अंदर वेरिएशन आ रहा है, वो वेरिएशन इज नथिंग बट द टॉलरेंस, कि कितना वेरिएशन आ रहा है, कितना वेरिएशन कम आए, दैट इज द टॉलरेंस लिमिट. So tolerance is the greatest range of variation that can be allowed for instrument or equipment. जैसे हम लोग का टॉलरेंस लिमिट है 0.06, मतलब उतना वेरिएशन प्लस और माइनस वेरिएशन के लिए तुम्हारा सैंपल, तुम्हारा इक्विपमेंट इज अलाउड है. सो दैट इज नथिंग बट अ टॉलरेंस लिमिट. डू यू हैव एनी डाउट अप टिल नाउ?
I hope no doubt because nobody is using. So how to determine the tolerance interval? I just read this particular example because only 2 minutes are left from these particular lectures. So if we miss, then we can definitely continue for your next session. Till I hope nobody is having any doubt. So we will continue to reading this particular slide and then we will stop. So how to determine the tolerance interval? To determine the tolerance interval in a measurement, add and subtract one half of the precision of measuring instrument to the measurement. अभी क्या समझा? कुछ नहीं, just read the example. ठीक है? So पहले मैं definition फिर से पढ़ती हूँ ताकि you can just go to the word. तो determine the tolerance, do determine the tolerance मतलब उसका tolerance का limit हम लोग find out करें. The interval in measurement, add and subtract one half of the precision of the measuring instrument to the measurement. After what it is the precision, ये reading हम लोग के कहाँ पे मिला था? जब when we are doing the validation, तब हम लोग उसका accuracy का and precision का limit set करते हैं. If you remember, right? कि हम लोग जो भी practical करते हैं तब उसके बाद हम लोग को define करते हैं कि what is the limit for your precision and accuracy का acceptance criteria क्या रहेगा. ये हम लोग किस basis पे decide करते हैं? Based on the range and वो सारे factors के हिसाब से we are deciding. So जो भी तुम लोग का प्रिसीजन का रेट रहेगा, सो एड एंड सब्ट्रैक्ट वन हाफ. दैट इज कि सपोज प्रिसीजन का रीडिंग है 1, सो वन हाफ मतलब प्लस 0.5 माइनस 0.5, इट्स योर टॉलरेंस लिमिट फॉर वन रीडिंग. मतलब सैंपल का रीडिंग अगर 1 आ रहा है तो 1.5 और 0.5 इज द टॉलरेंस लिमिट फॉर दैट पर्टिकुलर सैंपल. ठीक है? You can read just one more example. The time is less than 1 minute, so I just read. I hope we can just cover the reading this particular example. So if the measurement made with 10 ml of pipette is 5.6 and pipette has a precision for 0.12, then the tolerance interval for this measurement is 5.6 plus 0.05 ml, and that is from 5.55 or 5.65 ml. Any measurement within this range is either tolerable and precise as a correct.